تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم یرمیہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم 22ویں اور 23ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ عزیزو، گزشتہ قسط میں ہم نے 3 پیغامات کا تذکرہ کیا۔ ایک پیغام صدقیہ بادشاہ کے لیے، ایک سب لوگوں کے لیے اور ایک بادشاہ کے خاندان کے لیے تھا، اور آج ہم 4 بادشاہوں کے لیے 4 پیغامات کے متعلق بات کریں گے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم بھائی یوسف کا خیر مقدم کروں گا۔ بہت شکریہ بھائی، اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ یرمیہ کی نبوت کا 22واں باب کس بارے میں ہے؟ میں کہوں گا کہ اس میں بابل کی اسیری سے پہلے 4 شریر بادشاہوں کا ذکر ہے۔ اس باب میں ان کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ پہلا بادشاہ صدقیہ 1 سے 9 آیت، اور پھر اس کے بعد 10 سے 12ویں آیت تک ابی سلوم اور یوسیہ کے نام ایک واضح پیغام ہے، اور پھر 13ویں آیت سے 19ویں آیت تک یہو یکیم کے نام پیغام ہے، اور چوتھا 20ویں آیت سے باب کے آخر تک میں کہوں گا کہ کونیا بادشاہ کے نام ایک واضح پیغام ہے۔ لیکن تاریخی طور پر بادشاہوں کی یہ ترتیب نہیں۔ تاریخی لحاظ سے یوسیہ کی موت کے بعد پہلا بادشاہ ابی سلوم تھا، اور پیغام میں وہ دوسرے نمبر پر آتا ہے، اور اس کے بعد اور پھر یہو یکیم یہاں پر تیسرے نمبر پر ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھے اور آخری نمبر پر کونیا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد صدقیہ بادشاہ آیا، اس کا ذکر باب میں سب سے پہلے ہوا۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں تاریخی کتب کے بارے میں بتائیں۔ اس میں بادشاہوں کی تاریخوں کا بیان ہے۔ ہمارے ناظرین جو ان تاریخی کتب کو پڑھیں وہ ان بادشاہوں کی تاریخ کو جان سکیں۔ دیکھیں، دوسرے سلاطین کے آخری ابواب میں آخری 4 بادشاہوں کا تذکرہ ہوا، اور اس میں بابل کی اسیر کا بیان ہے، اور ہم دوسری تواریخ کی کتاب میں اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر صدقیہ بادشاہ کے ایام میں ہونے والی اسیری اور 4 بادشاہوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ دوسرے سلاطین اور دوسری تواریخ کے آخری ابواب میں اس کا بیان ہے۔ 22ویں باب کا پہلا حصہ 1 تا 9 آیات ہے۔ اس میں صدقیہ بادشاہ کے لیے پیغام ہے۔ اس پیغام میں کیا لکھا ہے، اس کے متعلق ہمیں بتائیں۔ میں اس پیغام کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ صدقیہ اور یہو یکیم دونوں نے 11 سال حکومت کی، لیکن اس کے بعد آنے والے بادشاہ سلوم اور کونیا نے 3 ماہ کے لیے حکومت کی، اور یہ کل ملا کر 22.5 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ لیکن پہلا پیغام صدقیہ بادشاہ کے نام ہے، اور یہ وعدہ اور تنبیہ ہے کہ اگر لوگ توبہ کریں تو خدا معاف کرنے کو تیار ہے۔ اور صدقیہ سے پہلے اسیری کے 2 ادوار تھے، اور پھر پہلا یہو یکیم کے دنوں میں، دوسرا یہو یکین، اور تیسرا صدقیہ کے ایام میں ہے۔ اور خداوند نے صدقیہ بادشاہ سے وعدہ کیا کہ جب لوگ توبہ کریں گے تو وہ ان کو معاف کرے گا، اور چوتھی آیت میں لکھا ہے، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو داؤد کے جانشین بادشاہ رتھوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اس گھر کے پھاٹکوں سے داخل ہوں گے۔ یہ وعدے کا پیغام ہے، پر اگر تم ان باتوں کو نہ سنو گے تو خداوند فرماتا ہے کہ مجھے اپنی ذات کی قسم یہ گھر ویران ہو جائے گا۔ مجھے اپنی ذات کی قسم یہ گھر ویران ہو جائے گا۔ یہ پیغام صدقیہ بادشاہ کے لیے ہے۔ خداوند نے پہلے ان کو تنبیہ کی۔ اس سے پہلے وہ یہو یکم اور یہو یاکین کے دور میں اسیر ہوئے۔ بالکل بھائی یوسف، اس کے بعد 10ویں آیت سے 12ویں آیت میں سلوم کے لیے ایک پیغام لکھا ہے۔ مردے پر نہ رہو نہ نوحہ کرو، پر اس پر جو چلا جاتا ہے زار زار نالا کرو، کیونکہ وہ پھر نہ آئے گا نہ اپنے وطن کو دیکھے گا۔ کیونکہ شاہ یہودا سلوم بن یوسیہ کی بابت جو اپنے باپ یوسیہ کا جانشین ہوا اور اس جگہ سے چلا گیا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ پھر اس طرف نہ آئے گا، بلکہ وہ اسی جگہ مرے گا جہاں اسے اسیر کر کے لے گئے ہیں، اور اس ملک کو پھر نہ دیکھے گا۔ بھائی یوسف،
बादशाह के लिए इस पैगाम के बारे में बताइए। सलूम बिन यूसिया और दूसरे सलातीन में यहू आखिज एक ही शख्स है। सलूम और यहू आखिज एक ही शख्स के नाम हैं और इसके बाद शाह मिस्र फिरौन उनको असीर करके मिस्र में लाया क्योंकि उसने धोखा दिया। और यहाँ लिखा है कि बादशाह अपने मुल्क को फिर ना देखेगा, सो उसने मिस्र ही में वफात पाई। दर हकीकत हमने मुकाशफा के 16वें बाब में हर एक मजदून की जंग के बारे में पढ़ा है और जी। मैंने इस आयत का हवाला दिया, मगर उस पर जो चला जाता है जार जार नाला करो क्योंकि वो फिर ना आएगा। वो एक शख्स से मुखातिब है, यहू आखिज यानी कि सलूम। जी। और मुकाशफा के 16वें बाब में लाखों लोगों के लिए लिखा है। जरा तसव्वुर करें कि हर मजदून की जंग में लाखों लोग हैं जो कि अपने घरों से बाहर निकल आएंगे, वापस ना आएंगे। लाखों लोग हर मजदून की जंग में मारे जाएंगे और उनका बहने वाला खून घोड़े की लगाम से भी ऊंचा होगा। और कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद बहुत मुश्किल अयाम होंगे और हम भी यर्मिया की तरह लोगों को आने वाले अयाम की मुश्किलात से आगाह करेंगे। काश के आज के लोग यर्मिया के अयाम के लोगों से बेहतर होते। आमीन। भाई यूसुफ 13वीं आयत से 19वीं आयत में एक और बादशाह यहोयाकीम के लिए पैगाम है। हमें उस बादशाह और उसके लिए इस पैगाम के मुतालिक बताएं। दर हकीकत यहोयाकीम एक शरीर बादशाह था। इस सबब से खुदा को ये नापसंद था और खुदा का असूल है क्योंकि जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर जो मेरी तहकीर करते हैं वो बेकदर होंगे। यहोयाकीम यूसिया का बेटा था और जब उसने तौरेत की किताब को सुना तो अपने कपड़े फाड़ दिए। पर हम यर्मिया के 36वें बाब में ये वाज़े तौर पर पढ़ते हैं कि यहोयाकीम ने नबूवत की तहरीर को आग में जला दिया। और फिर 18वीं आयत है, इसीलिए खुदावंद यहोयाकीम शाह यहूदा बिन यूसिया की बाबत यूं फरमाता है कि उस पर हाय मेरे भाई या हाय मेरी बहन कहकर मातम ना करेंगे, उसके लिए हाय आका या हाय मालिक कहकर नोहा नहीं करेंगे। उसका दफन गधे का सा होगा, उसको घसीटकर यरूशलेम के फाटकों से बाहर फेंक देंगे। बादशाह होने के बावजूद उसका दफन गधे का सा होगा क्योंकि उसने खुदावंद के कलाम से अदावत रखी और खुदावंद ने उसके खिलाफ अदालत की और ये उसका अंजाम था। जो भी खुदा के कलाम से नफरत करे उसका यही अंजाम है। जो भी खुदावंद कलाम से अदावत रखते हैं, जो भी खुदावंद के कलाम से अदावत रखता है और उसकी कदूसियत का इनकार करता है वो होशियार रहे। बाइबल फरमाती है, देखो उन्होंने खुदावंद के कलाम को रद्द किया, उनमें कैसी दनाई है। जी, जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप पर हलाकत लाता है। शुक्रिया भाई। अभी हमें खुदावंद यूं फरमाता है, इस आदमी को बेऔलाद लिखो जो अपने दिनों में इकबालमंदी का मुंह ना देखेगा, क्योंकि उसकी औलाद में से कभी कोई ऐसा इकबालमंद ना होगा कि दाऊद के तख्त पर बैठे और यहूदा पर सल्तनत करे। यहाँ तो बादशाह का घराना खत्म हुआ, फिर मसीह जिस्म के एतबार से दाऊद की नस्ल से किस तरह हुआ। आपने यहोयाकीन बादशाह का कहा जो कूनिया है। जी भाई यूसुफ। 24वीं आयत है, खुदावंद फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, अगरचा तू ऐ शाह यहूदा कुनिया बिन यहोयाकीम मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी होता तो भी मैं तुझे निकाल फेंकता। बादशाह ने अपनी बदकिरदारी के नतीजे में सब खो दिया और एक शख्स ने भी अपना सब कुछ खो दिया। मसीह के शागिर्द यहूदा इस्करियोती ने अपनी लापरवाही के सबब से खुदावंद को चंद पैसों के लिए बेच दिया। वो उनमें शामिल हो सकता था जो कि मैं कहूंगा कि इसराइल के 12 कबीलों की अदालत करेंगे, वो जिनके नाम आसमान के शहर की 12 बुनियादों पर लिखे होंगे। वो बर्रे के 12 शागिर्दों में से हो सकता था, लेकिन उसने अपने लिए हलाकत को चुना। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं कहूंगा कि दर हकीकत ये अहम और अच्छा सवाल है। उस शख्स की बुराई के नतीजे में उसकी औलाद में से भी कोई दाऊद के तख्त पर ना बैठ सका। और मैं कहूंगा कि मत्ती के पहले बाब में कुनिया या यहोयाकीन का जिक्र मसीह के नसब नामे में हुआ। सही। और दरअसल मत्ती के पहले बाब में ये नसब नामा मरियम के मंगेतर यूसुफ पर होता है और इसका मसीह यीशु से कोई लेना देना नहीं था। मसीह यूसुफ से पैदा नहीं हुआ। मसीह यूसुफ से पैदा नहीं हुआ।
تو پھر بائبل مقدس میں دوسرا نسب نامہ کیوں ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تضاد ہے، یہ سچ نہیں۔ وہ اس کو نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ متی اور لوکا میں 60 چیزوں میں فرق ہے، پر یہ دو مختلف نسب نامے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ لوکا کی انجیل میں مریم کا نسب نامہ ہے اور اس کا کنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی لیے کنیا کی عدالت ہوئی اور یہ پوری ہوئی۔ اس کی اولاد میں سے کوئی اس کے تخت کوئی تخت پر نہ بیٹھا یہاں اور بے اولاد ہونے سے یہ مراد نہیں کہ اس کے بچے نہیں، بلکہ اس کی اولاد تخت پر نہ بیٹھے بالکل گی۔ مسیح کنیا کی نسل سے نہ تھا، یوسف کنیا کی نسل میں سے تھا اور یوسف مریم کا منگیتر تھا، لیکن مسیح یسوع روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا۔ اور مریم بھی سلیمان کی نسل سے نہیں، وہ ناتن بن داؤد کی نسل سے ہے، اور یہ بالکل مختلف نسب نامہ ہے، اور یہ خدا کی حکمت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس نے اپنا کلام پورا کیا اور مسیح آیا، وہ اس تخت پر بیٹھے گا، اور کنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب کہ داؤد ان دونوں نسب ناموں میں موجود ہے، بالکل۔ لیکن متی 1 میں سلیمان بن داؤد کی نسل ہے، جس میں کونیا بالکل اور یوسف بھی ہیں۔ صحیح۔ کونیا کی اولاد میں سے کوئی داؤد کے تخت پر نہ بیٹھے گا، نہیں، لیکن داؤد سے ناتن اور پھر مریم مسیح یوسف سے بالکل نہیں بلکہ مریم سے پیدا ہوا۔ بالکل بھائی یوسف، صحیح۔ اس وضاحت کے لیے شکریہ۔ بھائی یوسف، ہم نے 4 پیغامات پر بات کی۔ 22ویں باب میں یہ پیغام 4 بادشاہوں کے لیے ہے: صدقیہ، سلوم، یہویکیم اور کونیا۔ پھر اس کے بعد 13ویں باب کے آغاز میں یوں مرقوم ہے، لکھا ہے ان چرواہوں پر افسوس، ان چرواہوں اور اچھے چرواہے کے درمیان آپ ہمیں فرق بتائیے۔ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یہاں شاہ اسرائیل کو چرواہا کہا گیا ہے، چرواہا۔ اور ہم نے آخری 4 بادشاہوں کے بارے میں جانا جو کہ سب کے سب شریر تھے، اور اسی لیے لکھا ہے کہ ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو ہلاک و پراگندہ کرتے ہیں۔ پھر اس نے خداوند کے چرواہے کی بات کی ہے۔ لکھا ہے کہ رب الفاج فرماتا ہے کہ اے تلوار تو میرے چرواہے، یعنی اس انسان پر جو میرا چرواہا رفیق ہے، بے دار ہو۔ اور پھر لکھا ہے یہ خداوند کا چرواہا ہے، اور اسی طرح یہ خداوند کا برہ ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں تو اپنے بادشاہ کو بٹھا چکا ہوں۔ خداوند نے اس کو بادشاہ اور چرواہا اور برہ مقرر کیا۔ 5ویں اور 8ویں آیت میں اسی کا بیان ہوا ہے۔ اب میں 5 تا 8 آیات پڑھوں گا۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام رکھا جائے گا خداوند ہماری صداقت۔ اسی لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ وہ پھر نہ کہیں گے کہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کے ملک کو مصر سے نکال لایا، بلکہ زندہ خداوند کی قسم جو اسرائیل کے گھرانے کی اولاد کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا نکال لایا، اور وہ اپنے ملک میں بسیں گے۔ بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ 1 تا 4 آیات میں اس نے جھوٹے چرواہوں اور اچھے چرواہوں کے درمیان فرق بتایا۔ پھر 5ویں آیت میں صادق شاخ کا ذکر ہوا۔ اس مخصوص نام سے کیا مراد ہے؟ اس مخصوص نام کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے۔ صادق شاخ کے الفاظ بائبل مقدس میں مسیح کے لیے بہت بار استعمال ہوئے۔ مسیح شاخ ہے، ناصری کا مطلب ہے شاخ، اور جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ مثلاً اس آیت میں خداوند کے شاخ ہونے کا ذکر ہوا، یعنی کہ مسیح جو کہ مسیحا ہے، جو خداوند کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی کے ساتھ ہوگی۔ اور پچھلے باب میں کنیا کے لیے لکھا ہے، اس آدمی کو بے اولاد لکھو جو اپنے دنوں میں اقبال مندی کا منہ نہ دیکھے گا۔ کنیا یا اس کی اولاد اقبال مند نہ ہوئی، پر ایک ہے جو کنیا کی نسل سے نہیں آیا، اور ہم نے اس پر بات کی۔ وہ کون ہے؟ وہ مسیح ہے، اور مسیح کے لیے زبور 1 میں لکھا ہے کہ جو کچھ وہ کرے گا بارور ہوگا، اور یسایہ 53 میں لکھا ہے کہ خدا کی مرضی اس کے ہاتھ سے پوری ہوگی۔ لکھا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، یعنی یہ
मुस्तकबिल में होगा। वो फिर ना कहेंगे कि जिंदा खुदा की कसम जो नबी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, बल्कि जिंदा खुदा की कसम जो इसराइल के घराने की औलाद को निकाल लाया। और सारी दुनिया में वो अभी परागंदा है, लेकिन वक्त आने पर मसीह अपने लोगों को जमा करेगा, क्योंकि उसने उनके बाप दादा से वादा किया है। ये मुस्तकबिल में कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद पूरा होगा। खुदावंद अपने लोगों को बहाल करेगा, सिर्फ असीरी से वापस ना लाएगा, क्योंकि वो 2 ही कबीले हैं। बाकी कबीले दुनिया में बिखरे हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी वो किसी मुल्क से बाहर नहीं निकले। लेकिन बिल्कुल। 6ठी आयत है, उसके अयाम में यहूदा निजात पाएगा। ये जनूबी सल्तनत या 2 कबीले हैं, और इसराइल सलामती से सुकूनत करेगा, यानी सब कबीले लौट आएंगे। और ये कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद होगा। भाई यूसुफ, मसीह के शाख होने पर मुझे आप अपनी राय दें। कलाम मुकद्दस में और किस जगह पर मसीह को शाख कहा गया है? मसीह को 7 मर्तबा शाख कहा गया, और मैं इसको 4 हिस्सों में तकसीम करूंगा, और इसका जिक्र चारों अनाजील में है। यिर्मयाह 23 में है, मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी के साथ होगी। मसीह रास्तबाजी से बादशाही करता है, और मैं कहूंगा कि यहाँ पर मसीह के बादशाह होने का वाज़े बयान है, जैसे मत्ती की अंजील में हुआ। जिक्रिया 3 में लिखा है अपने बंदे यानी शाख को, और ऐसा ही मरकस में लिखा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिक्रिया के 6ठे बाब में लिखा है वो शख्स जिसका नाम शाख है, और लूका की अंजील में भी यही है। उसमें मसीह को इब्ने आदम कहा गया है, और यसाया 4 और 11वें बाब में उसको खुदावंद की शाख कहा गया है, और मैं कहूंगा ये मसीह के लिए है। और यूहन्ना की अंजील में भी इसका जिक्र हुआ है। भाई यूसुफ, इस मालूमात के लिए बहुत शुक्रिया। भाई यूसुफ, 23वें बाब में ये बात मुकम्मल हुई। फिर उसने 9वीं आयत से झूठे अंबिया का बयान किया। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं 21वीं आयत पर आपकी राय चाहता हूं कि उन झूठे नबियों ने क्या किया। 21वीं आयत में मरकूम है, मैंने इन नबियों को नहीं भेजा पर ये दौड़ते फिरे। मैंने इनसे कलाम नहीं किया पर उन्होंने नबूवत की। लेकिन अगर वो मेरी मजलिस में शामिल होते तो मेरी बातें मेरे लोगों को सुनाते, और उनको उनकी बुरी राह से और उनके कामों की बुराई से बाज रखते। यकीनन यहाँ खुदावंद मुतकल्लम है। उन नबियों के बारे में बताएं जो खुदावंद की मजलिस में खड़े नहीं होते, उसका कलाम नहीं सुनाते, बल्कि खुद से कलाम करते हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखें भाई, मैं कहूंगा कि नबी दरअसल वो होता है जिसे खुदा ने भेजा हो, और 21वीं आयत में वाज़े तौर पर लिखा है मैंने इन नबियों को नहीं भेजा। और मैं चाहूंगा कि हम बड़े अंबिया को याद करें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए यूहन्ना के पहले बाब में यूहन्ना के लिए पेशनगोई हुई। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। खिदमत का मियार यही है कि नबी खुदा की तरफ से भेजा गया हो, और यहाँ लिखा है कि मैंने उन नबियों को नहीं भेजा। दूसरा, मैंने कलाम नहीं किया पर उन्होंने नबूवत की। जब खुदा ने उनसे कलाम नहीं किया तो उन्होंने मुनादी किस तरह की? उन्होंने कहा बस खुदावंद फरमाता है, जबकि खुदावंद ने ऐसा नहीं किया, और उसके नबी उसके लिए कच्ची कहागल करते हैं। हालांकि खुदावंद ने नहीं फरमाया, और लिखा है मैंने उनसे कलाम नहीं किया पर उन्होंने नबूवत की। लेकिन अगर वो मेरी मजलिस में शामिल होते हैं तो मेरी बातें लोगों को सुनाते हैं। और फिर इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि एलिया और अलीशा ने कहा कि रब्बुल फाज की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं। ये लोग खुदा की मजलिस में खड़े नहीं होते, और वो बातिल कलाम सुनते हैं। और अगर वो मेरी मजलिस में शामिल होते हैं तो मेरी बातें मेरे लोगों को सुनाते हैं, और उनको उनकी बुरी राहों से और उनके बुरे कामों की बुराई से बाज रखते हैं। दानियल 12 में लिखा है जिनकी कोशिश से बहुतेरे सादिक होंगे और सितारों की मानंद अब्दुल अबाद तक रोशन होंगे। और मैं कहूंगा कि अजीम खिदमत वो है जो लोगों को खुदा की तरफ ले आती है। 32वीं आयत है जो झूठे ख्वाबों को नबूवत कहते हैं और अपनी झूठी बातों से और लफ्ज़ जनी से मेरे लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन मैंने उनको ना भेजा ना हुक्म दिया, इसलिए इन लोगों को उनसे हरगिज फायदा ना होगा। और लिखा है खुदावंद फरमाता है, और यही सच है। सही, जो भी खुदावंद की जानिब से कलाम करता यूं कहता है खुदावंद फरमाता है। जो खुदावंद के मजलिस में खड़ा नहीं होता और जिसको खुदावंद के कलाम का नहीं पता, वो जो भी कहे झूठ है। वो कहता है
खुदा ने उसको भेजा, पर ऐसा नहीं है। चलिए मेहमानों से उनका सवाल जानते हैं। 29वीं आयत है, क्या मेरा कलाम आग की मानिद नहीं है? खुदावंद फरमाता है, और हथौड़े की मानिद जो चट्टान को चकनाचूर कर डालता है, उसने खुदावंद के कलाम को आग और हथौड़े से तशबीह क्यों दी? भाई यूसुफ, खुदा के कलाम के लिए बहुत सी तशबीहात इस्तेमाल हुई। खुदा का कलाम आग और हथौड़े की मानंद किस तरह काम करता है? मेरा ख्याल है कि इसी वजह से लोग तौबा करने और खुदावंद के कलाम को सही। रद्द करके झूठ और ख्वाबों को तरजीह देना पसंद करते हैं। मीठे और अल्फाज। गेहूं को भूसे से क्या निस्बत, पर खुदा यूं फरमाता है कि खुदा का कलाम गेहूं है, मसीह गेहूं है। और इसके अलावा लिखा है कि ये वो कलाम है जो बन को जला देती है, और ये कलाम हथौड़े की तरह पत्थर को चकनाचूर कर देता है। पर लोग ना अपनी किसी चीज को जलाना चाहते हैं और ना ही अपने बुतों को तोड़ना चाहते हैं, और ना ही उन्हें खुदावंद का कलाम सुनना पसंद है। इसीलिए यिर्मयाह नबी के दौर में झूठे नबियों की बातें बहुत मशहूर थीं। अफसोस के आखिरी अयाम में भी ये बातें बहुत मशहूर होंगी। पर खुदा का कलाम आग है और ये हथौड़े की मानिंद चकनाचूर कर देता है। पर अफसोस के लोग इसको अहमियत नहीं देते, लेकिन दाना शख्स गेहूं को भूसे पर तरजीह देता है, क्योंकि इंसान भूसा नहीं खा सकता। सही। नौजवान गले से बढ़ेंगे और लड़कियां नई मै से नशोनुमा पाती हैं। सही, शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? जैसा कि आज की किस्त से हमने बहुत कुछ सीखा, मैं कुछ सवाल करूंगा और आज का पहला सवाल 22वें बाब में से है। ये 4 बादशाहों के लिए 4 पैगामात हैं। हम सिदकिय्याह के मुतल्लिक क्या जानते हैं? मजीद खुदावंद ने उसको क्या पैगाम दिया? सिदकिय्याह बादशाह के दिनों में असीरी का तीसरा मरहला पूरा हुआ। खुदावंद ने इस पैगाम में वादा किया कि अगर लोग तौबा करें तो खुदावंद उनको माफ़ करेगा। अगर वो अपने दिल सख्त करें तो खुदावंद ने उनको तंबीह की कि वो उनकी अदालत करेगा। और हम सब के लिए भी यह एक सबक है। खुदावंद ने पहले 2 बार असीरी से उनको तंबीह की, पहले यहोयाकीम के अयाम में और दूसरी यहोयाकीन या कुनिया के अयाम में। जी भाई यूसुफ, बिल्कुल ठीक है। तीसरा मरहला यही आखिरी है। जी, ये सिदकिय्याह के अयाम में पूरा हुआ। बिल्कुल। उसने खुदावंद की तंबीह पर तवज्जो ना दी। सही। 30वीं आयत में यहोयाकीन या कुनिया ने लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि इस आदमी को बे औलाद लिखो जो अपने दिनों में इकबालमंदी का मुंह ना देखेगा, क्योंकि उसकी औलाद में से कभी कोई ऐसा इकबालमंद ना होगा कि दाऊद के तख्त पर बैठे। मती पहले बाब में खुदावंद यसु मसीह का नसब नामा है। इसमें कुनिया की नस्ल और यूसुफ का जिक्र हुआ। वो बे औलाद था या उसकी औलाद थी? यहाँ बे औलाद के मायने ये नहीं कि उसके कोई बच्चे नहीं, बल्कि उनमें से कोई बादशाह नहीं बनेगा। मत्ती की अंजील में मसीह का नस्बनामा है, उसमें कोनिया बादशाह का जिक्र है। ये यूसुफ पर ख़त्म हुआ, उसका मसीह से कोई ताल्लुक नहीं। मसीह मरियम से पैदा हुआ। मरियम का नस्बनामा लूका में लिखा है, उसमें कोनिया बादशाह नहीं है। सही। लूका की इंजील में मसीह के नसबनामे में कुनिया का जिक्र नहीं, जिस तरह मती की अंजील में है। लूका में नातिन बिन दाऊद है। शुक्रिया भाई यूसुफ। सही। ठीक है। 23वें बाब की 5वीं आयत है, देख वो दिन आते हैं, खुदाउन फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा। सादिक शाख से क्या मुराद है? शाख और नासरी का लफ्ज एक ही है। खुदाउन यसू के लिए लिखा है, नबियों की मार्फत कहा गया था वो नासरी कहलाएगा। नबियों की मार्फत ये लिखा है, 7 मर्तबा इसका जिक्र हुआ और चारों अनाजील में ये इसे तरतीब से लिखा है। यिर्मयाह 23वें बाब में सादिक शाख का जिक्र मौजूद है। वो बावर होगी मती की अंजील में। सादिक शाख बादशाही करता है। बिल्कुल। जकरिया में अपने बंदे यानी शाख के अल्फाज लिखे हैं। यह मरकज की इंजील से मिलता है। मरकज में मसीह खुदा जी का बिल्कुल। बंदा है। जकरिया 6 में वो शख्स जिसका नाम शाख है, यह लूका की इंजील से मिलता है। लूका में मसीह एक कामिल इंसान है। यसाया 4 और 11वें बाब में लिखा है, खुदा उनकी तरफ से रवीदगी। मरकज की इंजील में इन अकानीम का जिक्र मौजूद है। यहूदा की शाख यहूदा की। और मसीह मुजस्सम कलाम है। जी भाई यूसुफ, जी बिल्कुल 10 में से सही। कितने नंबर देंगे? जबरदस्त। ठीक है, शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, खुदा आपका आपको भी बरकत दे। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, यिर्मयाह 23वें बाब की 29वीं आयत में खुदावंद के कलाम के लिए मरकूम है
यर्मिया 23 में है, क्या मेरा कलाम आग की मानिंद नहीं? खुदावंद फरमाता है, और हथौड़े की मानिंद जो चट्टान को चिकना चूर कर डालता है। मैं कहूँगा कि खुदा का कलाम मौसर है, वो बनाता भी है और वो चिकना चूर भी कर डालता है। जो गिरने को हो उसको संभालता है, और जो भी उसके खिलाफ खड़ा हो उसको चिकना चूर कर डालता है। वो खाकसार को बढ़ाता है और मुतकब्बर को चिकनाचूर करता है। सो उसके कलाम का जवाब दें, उसको अपने दिल पर असर होने दें, रास्तबाजी में जिंदगी बसर करें ताकि वो हमसे राजी हो। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे।